एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਬਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੂਬਲ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਖਾਲੂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੂ ਵਿਖੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1938 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੂ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਣਧੀਰ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ, ਅਜਨਾਲਾ, ਚਬਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1956 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का उच्चार किया होया है। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पावन शब्द में सानू समझी दे रहे हैं कि इन्हां अखां दे नाल सतगुरु जी कहते बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे मित्र, बहुत संबंधी जिहड़े देखते हैं चले जा रहे हैं। फिर मन दे विच ख्याल होता है, सतगुरु कहते कि इन्हां दा ये जो शरीर छड्ड के रूह जाते हैं कि इन्हां दा मिलाप परमात्मा दे नाल हो जाता है। पहला सतगुरु भगती के विच प्रश्न करते हैं कि नाल ही इसका उत्तर देते हैं। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਗਠੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਈ। जीवात्मा का परमात्मा के नाल मेल हो नहीं सकता है, पर जे इसने कोल चंगे गुणा की गठड़ी होगी, चंगे गुण होंगे तां जे गुण होवे गठड़ी है मिलेगा सोई। उस जीव आत्मा का उस परमात्मा के नाल मिलाप हो जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ एक दिन इस संसार को जाना है, जदों जाना है ये धिया पुत्र साथ संबंधी दुनिया की कोई वस्तु मेरे नाल नहीं जानी। उथे जे नाल जाएगा कि जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत का। उस जीव आत्मा के नाल परमात्मा का मिलाप होवेगा ते सही, पर जिहड़ी जीव आत्मा ने जिउंदे हुए परमात्मा नूं चेते विच रखिया, जिहने मरना चेते दे विच रखिया ते जिन्हों मरना चेते दे विच आवे वो फिर इस संसार को अपना जीवन जिहड़ा है वो सवार करते रहते हैं। तो पावन शब्द सारे आप कल की पावन पंक्तियां का जाप करिए। एक शब्द की बोली हाली नाम हो नाम पर विचार करके संगत जा रही है। संगतां नूं बेनती है, भैणां विशेष करके अंदर जगह काफी है, अंदर भी आप आके बैठ सकते हैं। आओ सारे प्रेम के नाल आप रल के कीर्तन द्वारा निकली हुई रूह आप श्रद्धा से भेंट करते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर असली परिवार के नाम का इजहार जिस दिन जीव चला जाता है अंतिम संस्कार समय खुला समय के पीछे भी आप परिवार का दुख का इजहार करीदा है। पर जो अंतिम अरदास के आने हैं उन सारिया का मकसद एक होता है, संपत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवे सारे ही आप बिछड़ी हुई लोग श्रद्धा से भेंट करवा दिया। आओ बड़ा प्यारा शब्द सारे गाने साजन चले
सारे ही जीव भुलणहार हैं। कोई 2000 भुला वध करता है, कोई घट करता है, असीं सारे भुलणहार हैं। सतगुरु जी बख्शणहार हैं। संगति रूप में सारे अपने चरनां च अरदास बेनती करन वास्ते आए। जदों भी लाल असीं किसी दी अंतिम अरदास ते जांदे हां, जिथे असीं विछड़ी हुई रूह शरधा दे उत्ते भेट करदे हां, उत्थे नाल साडे सारिਆਂ वास्ते एक बैस ਹੁੰਦਾ है, सारिਆਂ वास्ते एक सुनेहा ਹੁੰਦਾ है। ये जी मौत है सबना ते वारी वारी आ जानी है। क्या जाना क्यों मरे है, कैसा मरना। सबना ने आपको अपनी वारी के नारे संसार को जाना है। जिवें अज आप मानसियां नूं याद कर रहे हैं, एक दिन समा आवेगा आपा नहीं होवांगे, अपनी जगह पे होर बैठे लोग अंतिम अरदास करोगे। इसी तरह ये जिंदगी का एक सच है कि गुरु की बाणी को जो असीं पढ़ते हाँ, बाणी को जो असीं समझते हाँ, सतगुरां दी बाणी सानूं वार वार इस गल तो सुचेत कर रही है, इस गल वल ध्यान दिवा रही है। भाई जो कुछ सच मान रहा है, दरअसल ये सच नहीं। रे नारद ये साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुपना बिन सक लगत ना बाण। सतगुरु कहते इस संसार इस तरह जान जिवें कोई सुपना वेख रहे हैं। असीं दुनियावी लोग रात सोते क्या कोई सुपना आ जाए वो सानूं झूठा लगता है। असीं कहने नहीं रात सुपना देखिया सी, उते बंद अख दे विच सुपना सी, उते सुते पिया सुपना आया सी। सुपने कदे सच नहीं हुंदे, असीं इस तरह कहने हां। असीं दुनियावी लोग इस तरह समझते हाँ कि जो अख खुल गई नींद तो बाहर आ गए, हुण जो कुछ देख रहे हैं हुण सच है। सतगुरु कहते नहीं, जो तू रात देख रहा सी वो बंद अख दा सुपना सी, वो भी झूठा सी। और तू जो दिन दे विच देख रहा है ये खुली अख दा सुपना है। रात वाला भी सुपना झूठा सी, दिन वाला सुपना भी झूठा सी। ये तेरा भुलेखा है। जैसे रैन परम ने चल सर प्रभात। इते सतगुरु समझा रहे ने संसार में इस तरह समझ जिवें कोई सुपना वेख रहा है। इते सतगुरु इस तरह समझाते हैं संसार में इस तरह जान जिवें किसी के घरे प्राहुणा आया है। जैसे रैन परम प्राहुणे आया। ये आप सारे ही जानते हैं परौना ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ परौने बन के ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, परौना 1 2 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ परौना ਆਇਆ। जैसे परौणिया वांग ये जीवन है। चेते रखिए घरां विच 2 तरह के परौणे होंदे। एक परौणा घर विच आवे ते उसदे जाण तो बाद भी किन्ने दिन उहनूं चेते करी रहे, गल्लां कर कर उन्हें चेते करीदा, फोन भी करीदा, उनके चंगे गुनाह करके उन्हें चेते करीदा।
सोचीदा है कि ये प्राहुणा एक दो दिन होर रह जाता। सच्ची मुच्ची कई लोगों का जीवन चंगे प्राहुणे वर्गा हुंदा। जिवें साडे बहुत अति सत्कारयोग मास्टर जगदीश सिंह जी, जिवें वीर जी दस रहे सन, वीर कुलदीप सिंह जी, दलवीर सिंह जी शाहवाले तो कि बाबा जी का जिहड़ा जीवन सी बहुत वधिया जीवन, नगर दे विच बहुत प्रेम, बड़ा मान ते सत्कार उन्होंने जिहड़ा खटिया है। सच्ची मुच्ची कईयां दा जीवन चंगे प्राहुणे वर्गा हुंदा है। वो जदों भी संसार तो जाते हैं उन्होंने दे जान तो बाद मन विच ये ताक रहती है कि ये कुछ चिर साडे विच होर रह जाए। घरां विच बेनती कि किसी दो तरह के प्राहुणे प्राहुणा आवे, जी नहीं करदा ये वापस जावे। बार बार चेते करीदे जान तो बाद ते कई बार घरां दे विच प्राहुणे इस तरह दे भी आ जाते हैं कि कई बार बीबियां भैणां भी कहंदियां सुनियां हन कि रब करे दोबारा इस तरह दा प्राहुणा ना आवे। सच्ची मुच्ची कई लोगों का बाणी टुट के जीवन इस तरह का हो जाता है, उन्होंने प्राहुणियां वर्गा जीवन हो जाता है जिहड़े प्राहुणे नूं दोबारा असीं अपने विहड़े च वाड़ना। एक चंगे प्राहुणे याद कर रहे हैं। उत्थे इलाके भर तो सारी सिख संगत अति सत्कारयोग जथेदार गुरवैर सिंह जी डोगरावाल, मैंबर सरबान SGPC बहुत इलाके दे विच दुख अते सुख दे बहुत लंबे समय तो असीं देख रहे हैं। हरेक दुख के सुख दे इलाके दे विच पहुंचते हैं जिथे आप सारी सिख संगतां संगती रूप दे विच जुड़ बैठे जथेदार होर इलाके तो पतवंते सज्जन आप इधर ठाठा मारदा होया इकट्ठ इस गल दा सबूत है कि वाकई ही मानवी दा जीवन बहुत प्रेरणा स्रोत जीवन। सच्ची मुच्ची कई लोगों का जीवन इस तरह का होता है, उन्होंने जान तो बाद उन्होंने जीवन को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक गल चेते विच रखियो, हमेशा मैं ये गल कहना हुंदा, दुनिया के भावे कोई जिन्ना मर्जी सियाणा बंदा होवे बंदा अधूरा ही हुंदा है, पर सतगुरु कहते साज परिचय गुणे तेरी छोड़ आपन चली है। सतगुरु कहते अवगुणा दी गल नहीं करनी, गुणा दी साज करनी है कि चंगे गुण जिहड़े हन वो जीवन दे विच ग्रहण करने हैं। सो सारे ही आपां गुरु पूरा ते पूरा गुरु ही है, फिर भी कई लोगों के बहुत चंगे गुण हो जाते हैं, उन्होंने जीवन को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सतगुरु की पावन बाणी का आकर्षण पढ़ रहे हैं। जिस वश सोई रह जाएगा रोज विषय से कीजै। सच्ची ये जीवात्मा परमात्मा की वस्तु है। जिवें कोई आठ रिश्तेदार कोई चीज मंगवी ले लेके कुछ देर बाद वक्त के आपां वापस कर दईए, ये चीज वरतन तो बाद अल्लाह का धन्यवाद करता है। सतगुरु कहते बिल्कुल एक जीवात्मा नहीं, उस परमात्मा की दृष्टि हुई कोई उधारी चीज मांग रहा सी, उस परमात्मा ने वो अपनी वस्तु को अपनी जीव आत्मा को अपने विच बुला लिया है। जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा रोज किसे सोई है किनो रोज दइए, इसके नाम मुलाकात करिए। पवन में पवन समाया ज्योति में ज्योत आया, जितो ये ज्योत आई से विचार में प्रवेश हो गए। सो सारे गुरु दी हजूरी के विच गुरु दी मत दे अनुसार अपने परिवार दे नाल अति सत्कारयोग सरदार शमशेर सिंह शमशेर सिंह जी अते उन्हां दा सारा ही परिवार
रल के माता जो श्रद्धा भेंट कर रहे हैं उन्होंने सारा परिवार सरदार दलबीर सिंह जी, सरदार बलविंदर सिंह जी, सरदार स्वर्ण सिंह जी, सारा परिवार उन्होंने बेटियां साडियां भैणां राजदीप कौर, अमरदीप कौर, किरणजीत कौर, सारा चरणजीत कौर, सारा परिवार रल के जिथे आप मास्टर जी का श्रद्धा के नाम भेंट कर रहे हैं, गुरु चरणों के अरदास बेनती कर रहे हैं, उथे नाल नाल उन्होंने आप चेते भी कर रहे हैं, उन्होंने चंगे गुणा कर रहे हैं। भावें कि मां बारे विद्वान बड़ा कुछ कहते ध्यान देखता जरा, पर मैं हमेशा ये गल महसूस करता हाँ, तुसीं भी करते होवोगे। ठीक है कि मां का संसार से कोई रिश्ता नहीं, पर मैं कहना प्यो वर्गा भी संसार से कोई रिश्ता नहीं। मां अते पिता के सुभाव दे विच फर्क है। मां का प्यार दिखाई देता है, पिता का सुभाव कुदरत वालों रब ने इस तरह बनाया है, उसका प्यार जिहड़ा दिखाई नहीं। पिता की बड़ी बड़ी कुर्बानी होती है। बुजुर्ग बैठे अज असीं वड्डियां वड्डियां कोठियां दे मालिक सरदार बने हैं, बुजुर्गों को पूछो भाई सरदारियां की एवं मिलती है। इन्हां बुजुर्गों ने दिन रात यहाँ रह के जदों कोई पानी के प्रबंध नहीं सन, कोई बिजलियां के प्रबंध नहीं सन, ये जमीनां इस तरह पत्थर नहीं सन, कोई मशीनरी का युग नहीं सी, कोई सड़कों का प्रबंध नहीं सी, उस समय इन्हां बुजुर्गों ने दिन रात मेहनत करके कई कई दिन भूखा रह के माड़ा खा के माड़ा पा के एक बुजुर्गों ने जिन्हें मास्टर जी मास्टर जगदीश सिंह और उन्होंने हाण के बुजुर्गों ने ये मेहनत करके ये समय अज सानू वेखण नूं मिले हैं। इस करके मैं हमेशा कहना एक पिता की बड़ी वड्डी कुर्बानी होती है। मैनूं बड़ा चेता है अज तो 5-7 साल पहला असीं सुल्तानपुर के नेड़े पिंड इसरगिया गया, उत्थे कीर्तन करके निकले। किसी मां की अंतिम अरदास सी ते मां ने मथाए बोलिया। जदों बाहर निकले ते एक बुजुर्ग ने मैनूं बुला लिया ते मैनूं उहने भरे हुए मन के नाल कहा, कहंदे ज्ञानी जी तुसीं सारे ज्ञानी मां की प्रशंसा करदे हो, प्यो की गल ही कोई नहीं करदा। मैनूं इस तरह लगा कि बापू जी कोई सट जरूर लगी है। मैं उनकी गल वाल तवज्जो दी ते गौर नाल पुछया, कहंदा ज्ञानी जी 90% मावां नूं पुੱਤ सामने होते, पर पिता दे वारी बहुत कई बारी औखा हो जाता। मैं बुजुर्गों खोल के दसो, कहते जदों जीवन साथी चला जाए ना ते फिर नूहां दे कोल पुत्रां दे कोल बापू सामना किते ज्यादा औखा लगदा है। मावां दे नूं फिर भी किते ना किते सामभिया जांदा है कि तुसीं ज्ञानी की जिक्रा करदे हो बुजुर्गां नाल, तुसीं बुजुर्गां दी गल नहीं करदे। मैं उसकी गल नूं जिथे आखड़ा जा विचारिया कि कुछ हद तक मैं उन्हां दी गल दे नाल सहमत नहीं होया कि वाकई ही बुजुर्गां दी जिहड़ी गल है बहुत घट कीती जांदी। मां दी बड़ी वड्डी कुर्बानी, मां दी ममता दा कोई मुੱਲ नहीं, पर पिता दी बड़ी वड्डी कुर्बानी होती है अपने बच्चों वास्ते, अपने परिवार वास्ते, सारी जिंदगी वार देते हैं। मैं हमेशा एक गल बार-बार रिपीट करदा नवे बच्चों वास्ते, जदों भी बुजुर्गों के मान की सत्कार की गल आवे, बुजुर्गों की प्राप्ति की गल आवे, बुजुर्गों की मेहनत की गल आवे, मैं हमेशा ये गल कहना हाँ वो अज किते जाना होवे ते अलमारी खोल के खड़े हो जाए, कितना चिर पता ही नहीं लगता किहड़ा सूट पाई अलमारियां भरियां। मैं कहना इन्हां बुजुर्गों को पुछ के देखूंगा कि बापू तू जो 40-50 साल पहला किते ब्याह ते जाता है जवानी वेले वखा का बापू केड़ी अलमारी सी, किन्ने सूट बदलदा सी। फिर बापू दसेगा पुत्रा नहीं उदों कोई सूटां दा जमाना नहीं सी, उदों ते कई बारी लोई किसी दी हुंदी सी, जुत्ती किसी दी हुंदी सी, चादरा कई बारी किसी दा हुंदा सी, एक लोई दे नाल करके वांडा देख लेंदा सी। पुत्रा उदों अलमारियां सूटां नाल भरियां नहीं सी हुंदियां, उदों ते सवेरे खाली ते शाम दा फिकर हुंदा सी। बुजुर्ग बैठे अति सत्कारयोग मैंबर साहबान सरदार जरनैल सिंह जी, पता है ਆਪਾਂ देखिया है कि पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ,
नहीं तो 5-6 महीने दाने कटने ते फिर किसी ने मकई थोड़ा बहुत आटा किसी ने बाजरे का इस तरह घरों के टाइम पास होते सन। इस तरह खुला खुला सब कुछ बुजुर्गों की बड़ी बड़ी देन है। ते कई बार जो बुजुर्गों के सत्कार की गल आवे अजकल के बच्चे कह देते हैं, खास करके भैनों की शिकायत होती है जो सस के सत्कार की गल हो करेगी कि बेबे ने माड़े दिन देखे ते बेबे वो गल्लां नहीं छड्डदी, सुभाव नहीं छड्डदी, बेबे अज भी वो कुछ करदी है कि मैं कहना ना इस तरह मैं कह बेबे को बेबे ने माड़ा खा लिया माड़ा खा लिया इस करके कि ये दिन मेरे बच्चों को ना देखने पैण ते जेड़े बंदे दा सुभाव बन जाए ना सारी जिंदगी फिर वो सुभाव बन जाता। मां का सुभाव जरूर इस तरह का बन गया पर बनया अपनी औलाद वास्ते अपने बच्चों वास्ते। असीं कहदा बापू सतरा बता हो गया, बापू को पता सी कि मैं सतरा बता हो जाना है। साडे समाज की रीत है इंडियन लोगों की धीयां भावें हो 2 हो 3 हो साडे दिमाग में एक गल बड़ी है कि पुत्र जरूर चाहिए क्योंकि बापू को पता सी कि मैं वाकई सतरा बता हो जाना है। धीयां ने अपने घरे चले जाना है इस करके मैं ते सतरा बता हो जाना। कोई पुत्र होगा कोई नूह होगी तो मेरी सांभ संभाल करे बुजुर्गों को पता होगा सब। तो सतगुरु की कृपा कर बख्शिश कर मास्टर जगदीश सिंह जी बहुत ही इलाके नगर के पढ़े लिखे इंसान सन, सारे के नाल बड़ा प्रेम रखने वाले सन। सतगुरु कृपा कर बख्शिश कर फिर भी असीं भुलण हार हार सतगुरु की बख्शण हार हार सतगुरु की भुलां नूं ना चटारदे होया अपने चरणां विच निवास कर। पिछे सारे ही परिवार सतगुरु जी भाणा बाणी का बल अनंत प्रेम माए सतगुरु पाया सतगुरु का पाया सतगुरु सतगुरु की कृपा कर बाणी पढ़दे सिमरन करदे गुरु की हजूरी विच विचरदे
जाने अनजाने अनेक तरह ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ गाजीपुर तो ईश्वर सिंह जी दोनों उन्होंने नवाज उन्होंने सारे जितनी सिख संगतां हैं परिवार वाले सारे सिख संगतां बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया को याद माफी सतगुरु जी आखो जी उड़ान कला चढ़ती कला तेरे भाग्य सरबत दा भला इन माणियां दे मान ने ताणियां दे ताण ने उठियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सतगुरु सच्चे पिता वाहिगुरु जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਭਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ मास्टर भाई साहब भाई सरदार जगदीश सिंह जी पातशाह जी जितने आप जी ने सवास आरजू बख्शिश किए तिन्हां सवासां नूं पूरियां करते हुए इस मात लोक की यात्रा करते हुए कुछ रोज तो अकाल चलाना कर गए हैं तिन्हां दी आत्मक शांति वास्ते इस बाग परिवार के मुखी मैंबर भाई साहब भाई सरदार शमशेर सिंह जी समूह परिवार वालों सब तो पहला आप जी का ओट आसरा करते हुए अपने गृह खिस्त्री अखंड पाठ साहब जी करवाए हैं भोग तो उपरंत से प्रवाह सतगुरु जी आप जी की हजूरी अंदर आप जी के सचखंड गुरुद्वारा साहिब विखे आप जी के पातशाह जी कीर्तन के पंडाल सजाए गए हैं सतगुरु जी पातशाह जी कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्यान के महावाक्य अनुसार पातशाह जी भाई सरदार जगदीश सिंह जी की रूह की शांति वास्ते पातशाह जी आवागमन के चक्कर तो बचाने वास्ते कीर्तन करवाए गए हैं आप जी के कीर्तनी जथे पासों पातशाह जी कीर्तन करते हैं हाजरियां भरते हैं कथा वार्ता करते हैं पातशाह स्रोते जना पासों श्रवण करते हैं तो कोई एक नहीं अनेक प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां त्रुटियां होईयां होणगीआं अनजान बच्चे समझ के क्षमा करनी आगाह वास्ते समर्थ बख्शिश करनी पातशाह जी सेवक परिवार वालों पातशाह सेवक का सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए दे महावाक्य अनुसार आप जी के सेवक परिवार वालों आप जी के सोधनीक होने वास्ते पातशाही बछाई वास्ते गलीचा साहब भेटा किया गया है आप जी दी इमारतों वास्ते 5500 कमरा पातशाही भेटा करते हैं जिन्होंने खजाना विचों गलीचा माया आई है से खजाने भरपूर करने पातशाह जी आप जी के बचन हन कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे का बाहर न भवजल फेरा कृपा करनी विष्णु है जीव ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਤੀ ਵਾਲ न लग गए पार ब्रह्म शरण आए जागृत हमारे राम कर दुख लगे ना भाई सेवक परिवार ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ सुखा का प्रकाश करना देश प्रदेश बच्चों के सिर पर मेरा भरिया हाथ रखना अंग संग सहायता करनी पातशाह जी आप जी के सेवक परिवार वालों आप जी के दर से पवित्र कड़ा प्रसादी देग तैयार है गुरु का लंगर सज के हाजिर होया है आप जी के देग लंगर को भोग लगा है लग्या होया भोग आप जी के दर प्रवान होगा प्रवान होया प्रसाद लंगर आप जी की संगत रसनी लायक होगा जो जी शका तेरा सतनाम श्री वाहिगुरु नाम जपै आप जी के दरबार दियां दोनों नेड़ियों चल के संगतां ने हाजरियां भरियां सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां कदम कदम लेखे लाउणा सवास सवास नाम जपाउणा गुरसिੱਖੀ जीवन दान नाम दियां दातां बख्शिश करनियां पातशाह जी सेवक परिवार वालों पातशाह जी वस्त्र बर्तन बिस्तर जोड़ा इत्यादि वस्तुआं पातशाह जी भेटा करते हैं दर प्रवान होण हरमदान फतेह बख्शिश करनी पातशाह जी जो जी आप जी के दर आवे राजी ते प्रसन्न जावे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणी सर्वदा सोरठ हर
ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਰਹਾ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਸ਼ਾਏ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਪਰਵਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਸ਼ਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਾਉ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਂ ਸਵਾਸ ਆਦਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਿਓ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਵਰਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਮਤ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਜਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨਾਏ ਸ਼ਾਦ ਹਰ ਜਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ के समाज लोग की यात्रा के आए तीन धियां एक पुत्र को जन्म दिया और आप
ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਕਹਿ ਕੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇ ਗਏ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੰਗਲੇ ਜਾਇ ਸੁਖੇ ਜੀਆ ਹਮ ਪੇ ਵਜਾ ਟੁਕੜੀ ਰੋਆ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਨ ਜਨਮ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵਾਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਮਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਵੀਰ ਤੁਮੋਰੇ ਸੰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਲਬੇੜਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੋੜ ਅਤੇ ਫੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ।
वो सच्चे दरबार साहब ने चरण जाप राजे ने। पर मैं बेनती करके जाना होना कि अपनी खास करके भैनों अपन बच्चियों कि इस महामारी का जो युग बीतिया 2020 चल रहा है, इत्थे रब नूं ना भुल्यो। तुसीं उमर वेले मेरी धीओ बच्चियों भैनों अपने परिवारों में जुड़ियो कि अपने परिवार की लंगर प्रशादा तैयार करके अमृत वेले ते जदों तुसीं लंगर प्रशादा तैयार करते हो ते उदों जपजी साहिब दा पाठ गा करिया और जे जपजी साहिब दा पाठ नहीं करते ना ते मूल मंत्र का पाठ रब करके वाहिगुरू वाहिगुरू करके प्रशादा तैयार करिया। जदों प्रशादा तैयार हो जाए जे गुरु का आयोजन बहुत नहीं करनी तो रसोई में खड़िया होके ही अपने घर ठंडा पा के मन सतगुरां दे नाल जोड़ो, अरदास करो सच्चा पातशाह क्या कर लेना इसी सुखा नमकी कोई है दादिया प्यार कर देना है सुखा नमकी करी परिवार के मेर पर की तंदुरुस्ती बख्शी चढ़ती कला बख्शी हर नाल फतेह बख्शी। मैं समझा कि तुहाडा प्यार किया होया प्रशादा अमृत बन जाएगा और इस तरह दिन बीत जाता है, शाम पैंदी है फिर प्रभाव में प्रशादा तैयार करना ते फिर रहरास का पाठ करो वाहिगुरू का जाप करो। प्रशादा तैयार होने के बाद फिर अपना मन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जोड़ो ते अपनी रसोई खड़िया हो गया अरदास करो, दाते का शुकराना करो, दादिया प्यार कर देना सुखा नमकी होया तेरे भाने में मिल गया दादिया प्यार कर रात सुखा नमकी करें। और मैं समझदा कि तुहाडा वो प्रशादा प्यार कितना अमृत बन जाएगा कि तुसीं सारी रात में परिवार और रात में प्रशादा छक के आराम करेगा, किसी को माड़ा सुनना नहीं आएगा। आज ही फर्क कर दिया सारी रात रब के भाने को मिल जाएगी, कभी पैरा सुनना नहीं आएगा। तो जेडे परिवार में नशे वो एक दिन ऐसा आएगा जो साडियां धीआं बच्चियां भैणां हर रोज अमृतमई प्रशादा तैयार करनगियां। एक दिन उस व्यक्ति ने जिहड़ा उन्होंने घर जिहड़ा कि शराब पींदा जिहड़ा रात को नशे नाल फोटो के सौंदा वो अपने घर परिवार को कहना हुण मेरा नशा पीण जी नहीं करता क्योंकि उहदे घर ओहदी आत्मा दे विच रब दा वासा हो गया। वो प्रशादे ने रंग क्या दिता, वो प्रशादे ने वो अमृतमई प्रशादे ने वो जीवन बदल के रख दिया। मेरी भैनों ऐस महामारी के युग में जिथे आज देश की वन तलाश कर रहा है, साढ़े भी बच्चे उन्हें भी विदेशों में जाके आए, बच्चे बाहर बैठे हैं। पर मैं समझना कि मैनू कई ने कहा कि तू तो बाक्स नहीं बनता, मैं नहीं कभी बने। 23 जून 2020 पंजाब में कर्फ्यू लगा सका। असीं उस दिन तो लगातार जेडे गरीब लोग सी जेडे अपने रोज की रोजी रोटी कमा के प्रशादा छकते थे, असीं उन्होंने गुरु घरों जो प्रशादे तैयार करा के उन्होंने घरों तक पहुंचाने का यत्न किया। कितने 20 बैठे गए 30 बैठे गरीब उन्होंने सारे बता मिलते ऐसा कि मुंह ढक लिया करो। मैं क्या मेरा गुरु सुमरत है गुरु नानक पातशाह जिन्हें श्वास लिखे उन्हें ही मिले। रब नाल जुड़ के सवेरे अरदास करके करो मिलदा ओदे पानी की चलदा सारी दिहाड़ी। ते मैं क्या जी मैनूं लगदा कि मेरा गुरु सुमरत नाल कोई नहीं होगा।
जिन्हें गुरु का वो आसरा ले लिया उन्हें कभी अपने जीवन की नौकरी मिलता उन्हें सौखी मिलते हैं। इस तरह मासिक सिंह जी मैं पीछे से घर आया मिलके गया मैं क्या कि आज मासिक जी क्योंकि मेरे बड़े पढ़ मित्र सन कहते गोडिया ने बड़ा सराया और सारा शरीर ठीक है गोडिया ने बहुत करते मतलब मैं क्या गोडे बदल लेंगे आप कहते हम उम्र बड़ी हो गई जी नहीं करता अपना नवे लोग ना भाजी बहुत नेक इंसान अपने दुख छड़ी चले गया जिथे परिवार को अपने सगे संबंधियों ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆਦਾ मैं समझदा कि निजी तौर पर मैनू भी बहुत घाटा पिया क्योंकि असीं इस लोगों के संतां के धन धन गुरु रामदास पातशाह ने सानू अपने घर का झाड़ू प्रदान बनाया अपने घर के चैनल का सेवक बनाया तकरीबन 1996 तो लैके आज तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी कई इलेक्शन लगियां जित गए ते जिते किते ने सकते हैं आ बैठे ने साथ प्यारा सिंह ने बाहर बैठे ने और सुरेंद्र सिंह जी सरपंच साहब का बैठे हुए काका जी मेरे साथ सुखचैन सिंह जी और बहुत सुखचैन जी सारी संगत ये संगत के मेरे एक तो एक चार के सामने नाम को बड़ा सोमा लगेगा इन्हां दी बदौलत दी गुरु घर दी सेवा मिलदी है इन्हां दी कृपा दे नाल गुरु रामदास दे घर दी सेवा मिलदी है मेरे तो बड़े सियाणे बड़े लिखे रब दा है करने वाले हुए बहुत बैठे ने पर जेदे इसे समय सच्चे पातशाह कृपा करे और कोई ये गुरु घरों की सेवा मिलदी है अंत में मैं अपने बड़े वीर मास्टर जी के चरणों में सिर झुका के क्योंकि मेरे बड़े सत्कार सी उन्होंने चरणों में सिर झुका के गुरु शब्द राही अरदास सारे कर के गुरु शब्द राही उन्होंने मैं श्रद्धा में सत्कार पेश करना संबत साह लिखा मिलकर पाओ ते देव सजन सीसरियां जो होवे साहब सुने तुसी सारे ही परिवार के नाल अरदास देने वास्ते आए हो जो बुलाने वास्ते आए हो परिवार की चढ़ती कला ले आए हो अरदास करने वास्ते आए हो परिवार वालों उन्होंने बच्चियां वालों धीयां वालों पुत्र वालों नूहां वालों सारे ही सरकारी वालों सारे का किया ना मैं क्योंकि मेरा ड्यूटी भी बनती है मेरा हक भी बनता ते तुसी ओम कड़ा प्रसाद की मेघ सतगुरु की बख्शिश होनी है उस तो बाद आप लंगर प्रसाद छक के जाने की कृपा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू